Okay, so we have completed what else now? This is what we have started with the chapter number 3, and we have completed the introduction to universal banking. Then the how does the evolution of universal bank happen? Then what is exactly the universal banking as a concept? So through these three concepts, what we come to know here, universal banking is basically known to provide wide range of financial services. Then it is known for what we can say doing all this kind of a activity, all this kind of a banking activity in a one bank. That is what we can say commercial bank, investment bank, insurance, then again the selling securities, underwriting the issues, all this type of a financial services is being provided by the universal bank. Then what is be understood, like after the 1991 policy, when this LPG concept, liberalization, privatization and the globalization has come, from that onward the universal banking concept को ज़्यादा importance दिया गया. Then we have seen as per the guidelines which has given by the RBI in 2001, तभी उसको legally बताया गया कि अगर suppose if any of the bank want to convert itself into the universal bank, so what are all criteria they should be fit into that, and then only they can be considered as universal bank. Okay, so this part we have already seen. अभी तक हम लोगों ने तीनों part देखे हुए. Now today we have to start with the consumer finance here. What exactly the consumer finance? Okay, see. Mm, Consumer finance has over a period of a time has expanded its canvas from loans for customer durable to all types of loans made available to consumers for consumption of goods and services, and also for creation of capital asset of small or medium value range. The consumer finance has almost assumed the meaning of personal finance in today's context. The consumer finance as a segment is of importance of universal banking also for several reasons. It allows them to fill their product menu with plenty of product tailor made to meet various requirements of retail customer. The flexibility also could be brought in repayment option and takeover of high cost liability. See what exactly consumer finance है. कंज्यूमर फाइनेंस जैसे अभी ऐसा नहीं होगा कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है उसके लिए ही, उसको खरीदने के लिए ही लोन प्रोवाइड किया जाता है. इट इज नॉट अप टू दैट लिमिट नाउ. ओके, almost for any goods and services, if the customer wanted to consume that commodity, for that reason the loans is being provided. Even for the creation of capital asset of at small or at medium value range also, the consumer finance is being provided by the bank. And nowadays we can say the consumer finance is basically famously known as a personal finance also. और ये बहुत important हो चुका है because as we are talking about the consumer, as we are talking about the customer, their needs of the consumption. Okay, so you obviously those who are the account holder, they are also the consumers. Okay, तो उनकी हर एक चीज़ों को वहाँ पे satisfy करना, now it has become the prime importance for each and every bank. So जैसे हर एक बैंक के लिए ये कभी चैलेंजिंग रोल हो चुका है कि कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें. तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक और चीज़ है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट इज प्रोवाइडिंग देम द कंज्यूमर फाइनेंस, और वी कैन से प्रोवाइडिंग देम द पर्सनल फाइनेंस, और वी कैन से द पर्सनल लोन. ओके, तो यूनिवर्सल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी यूनिवर्सल बैंक भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, दैट हाउ what kind of a new instrument they can launch in the market so that the consumer needs can be satisfied through the banks only. ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल बैंकिंग में भी कंज्यूमर फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. The universal banking concentrate to penetrate through this segment because the heavy consumption of short-term sources of fund on the liability side can be matched by short-term application of fund in the segment. This can be proved to be effective in asset liability management tool. The risk in the consumer finance is comparatively lower as the risk is spread over a large number of borrowers, the selection of which is made based on the carefully made borrower assessment model. देखो, personal finance, or we can say the personal loan. Somewhat whatever finance, whatever loans we are providing, there will be the risk. Okay, so same way if you're going to see the consumer finance, ये भी रिस्की रहता है, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस का जो लोन रहेगा इट विल नॉट बी सच अ बिग लोन
कि जो लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर से जितना ज़्यादा ज़्यादा रिस्क रहता है, उतना रिस्क अपना कंज्यूमर फाइनेंस से नहीं रहेगा. वाई इट इज सो? लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स, और वी कैन से द बिग बोरोवर, इट मीन्स द कंपनीज डायरेक्टली, वी कैन से जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का जब हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज बिग इन द नंबर. एंड अगर वहाँ पे वो कॉर्पोरेट चला नहीं, वो कंपनी चला नहीं, सो वी विल गोइंग टू फेस द लॉस. बट वेन विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर फाइनेंस, तो यहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस उनके कंजम्पशन इज, इट विल नॉट बी सच अ बिग अमाउंट. ओके, तो रिस्क वहाँ पे भी रहता है कि वो रीपे होगा या नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा. बट दैट रिस्क कैन बी लोअर डाउन इफ वी आर एबल टू असेस द बोरोवर. अभी आप लोगों को इवन ये भी पता रहेगा, मतलब जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग शायद अभी उस कैटेगरी में नहीं आ रहे होगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, देन अगेन कंज्यूम क्रेडिट कार्ड का बिल, देन वॉट एवर बिल, या फिर ईएमआई पेमेंट का टाइमिंग. तो वहाँ पे अभी ये ना लोन देने से पहले एक ऐसा आ चुका है कि हम लोग कितना क्रेडिट स्कोर करते हैं करके. तो क्रेडिट स्कोर करते हैं मतलब क्या रहता है एग्जैक्टली कि हमारा जो रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड का ट्रैक किया जाता है कि हम लोग बराबर से जो भी अपना लाइबिलिटी है उसको बराबर टाइम पे रीपे करते हैं या नहीं. जितना डिले आप विद द फाइन्स, पेनल्टी के साथ आप जितना डिले करोगे किसी भी चीज़ का, आपका जो रेगुलर पेमेंट को करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल आपने टाइम पे नहीं भरा है, आपने ईएमआई टाइम पे नहीं भरा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल टाइम पे नहीं भरते हो, तो वो आपका है ना रिकॉर्ड वहाँ पे जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है कि, और आप जितना अच्छा स्कोरिंग रहेगा आपका कि नहीं इन्होंने कभी डिले नहीं किया है, तो वैसे लोगों को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, कोई भी बैंक देता है लोन्स देने के लिए. ओके, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है. सो बोरोवर का असेसमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए. एंड इफ वी आर गिविंग विद दैट काइंड ऑफ क्राइटेरिया कि इनका क्या क्या उनका हिस्ट्री है इसके बारे में, रीपेमेंट के बारे में, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को लोन दिया जाता है, देन विल कम टू नो दैट पर्सन इज वेरी जेन्युइन वन, and he will try his level best that he will not going to come into the faulty category. Okay, this is what we can say. Then it is proven by experience that delinquency rate in case of individual in salaried and professional class is comparatively lower, reducing the risks attached to the consumer loan to a great extent. The cost of handling this segment is also comparatively very low, as costs incurred in terms of post-sanction follow-up, ensuring end use of funds, monitoring the inflow and the outflow of funds, security inspection and the valuation are virtually nil here. What they are saying here कि अगर हम लोग लोन मतलब ये जो कंज्यूमर फाइनेंस, इफ वी आर गिविंग टू द व्हाट वी कैन से सैलरीड पर्सन और टू द प्रोफेशनल क्लास पर्सन, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम रहता है. ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों से रिस्क थोड़ा कम रहता है बिकॉज सैलरीड एंड द प्रोफेशनल वर्ल्ड दे आर अर्निंग इनकम एंड दे आर अर्निंग रेगुलर, और वी कैन से द मंथली इनकम, वो उनका फिक्स इनकम उनको मिलता रहता है, और उसके बेसिस के अकॉर्डिंग वी आर प्रोवाइडिंग द लोन टू देम. तो कंज्यूमर फाइनेंस में वहाँ पे तुम्हें रिस्क नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जगह पे बाकी किसी लोगों को अगर आप ऐसा फंड देते हो, पर्सनल लोन देते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क के चांसेस रहते हैं. और दूसरी बात ये भी रहती है कि लोन्स देने के बाद में उनका इवैल्यूएशन करना, कितना वो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं, वो कुछ कमा रहे हैं या नहीं, या कमा रहे फिर भी वो अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहे, तो वो फॉलो अप बहुत कम रहता है. So therefore, with the consumer finance only this kind of a risk is over there. So what you understood here? Consumer finance में ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? बिकॉज अमाउंट यहाँ पे कम रहता है. कंज्यूमर फाइनेंस अगर किसी सैलरीड या फिर प्रोफेशनल लोगों को दिया जाएगा, तो वहाँ पे रिस्क का चांसेस नहीं रहता है. लेकिन उसके अलावा किसी बिजनेसमैन को एक पर्सनल लोन के फॉर्म में अगर पैसा देते हैं, तो वहाँ पे रिस्क का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. ओके, तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने सजेशन किया है कि a complete assessment of the borrower should happen over there. Then only we will not going to face this kind of a risk. Okay, and nowadays many people are buying the commodity on the loan basis. So therefore universal banking को इसके ऊपर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट निकालना अभी बहुत जरूरी हो चुका है. See, the consumer finance can be divided into four categories. One is your advance against security. The advances against security like national savings certificate, shares, other paper security and gold.
देखो कंज्यूमर फाइनेंस कब प्रोवाइड करेंगे कि लोगों के पास ये सब सिक्योरिटीज है क्या, जैसे कि गोल्ड है, कितना गोल्ड है आपके पास, कुछ घर है क्या आपके पास, वो सब पूरा पेपर मतलब नहीं, ये तो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। सिक्योरिटीज के लिए उन्होंने लिया है कि शेयर्स है क्या, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है क्या, कोई बिल्स, कोई व्हाट वी कैन से कमर्शियल बिल्स वगैरह, ऐसा कमर्शियल पेपर वगैरह ऐसा है क्या, तो उसके अगेंस्ट हमें कंज्यूमर फाइनेंस दिया जाएगा। मतलब by looking at the security with the consumer, on that basis the loans or we can say the consumer finance will be provided. Then the advances against the property, housing loan, house improvement loans, loan against the existing property, loan against the fixed rental earning, मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको वहाँ पे फंड्स कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देन द अदर लोन, पर्सनल लोन, and then 2 week or 4 week loan, then loan for medical needs, equipment, education, travel, festival। ओके, तो इसके लिए भी लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको। देन लोन्स फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट, द कंज्यूमर और पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स आर टारगेटेड at special segment like salaried classes, professional, senior citizen, businessman, housewife. The products which are tailor made for consumer is in the specific class। उन्होंने और एक सेगमेंट बनाया है यहाँ पे कि कंज्यूमर फाइनेंस किसको देना चाहिए, पर्सनल लोन किसको देना चाहिए। So they are basically targeting the salaried person, professional person, senior citizen, even to the housewife they are giving the loan। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जैसे कि सैलरीड पर्सन है या फिर प्रोफेशनल है तो उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग, एंड इफ सीनियर सिटीजन्स आर देयर सो वेदर दे आर गेटिंग पेंशन या फिर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, तो उसके बेसिस के ऊपर लोन दिया जाएगा। हाउस वाइफ है, चलो फिर उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं, घर पे कितने अर्निंग मेंबर्स है, तो उनके अकॉर्डिंग वो कोई घर पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं क्या, तो उसके थ्रू उनको कुछ पैसा आता है या नहीं, उनके पास कोई गोल्ड है क्या, तो उसके बेसिस के ऊपर भी कंज्यूमर फाइनेंस मतलब लोन दिया जाता है। ओके, सो दिस वे कंज्यूमर फाइनेंस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ओके, बहुत कम था कंज्यूमर फाइनेंस के लिए। फिर अभी मुझे वन बाय वन बताते जाओ आप लोग। कंज्यूमर फाइनेंस मतलब यहाँ पे किस चीज के लिए लोन दिया जाता है, किस चीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, टेल मी यार, क्या लगता है आपको किन चीजों के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर फाइनेंस में? यस, कम ऑन। और इसको फेमसली क्या नाम है, कंज्यूमर फाइनेंस के अलावा हम लोग इसको फेमसली किसी और नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, टेल मी स्टूडेंट, सोचो ना थोड़ा, अपना लॉजिक लगाओ। कंज्यूमर फाइनेंस, तो यहाँ पे कंज्यूमर ये वर्ड आ गया, मतलब किन चीजों के लिए लोन दिया जाता है, बोलो। पर्सनल लोन। हाँ करेक्ट, पर्सनल लोन है। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। ओके, यहाँ पे हाँ यस, निकी ने कहा कि पर्सनल लोन, यस एग्जैक्टली, इट इज फेमसली नोन एज पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन हम लोग किन चीजों के लिए लेते हैं बताओ मुझे, क्या लगता है आपको पर्सनल लोन किन किन चीजों के लिए लिया जाता रहेगा? यस, होम लोन। हाँ होम लोन। अरे लेकिन तुझे बोलूं, होम लोन लेना ठीक है, लेकिन पर्सनल लोन के थ्रू अगर तू घर के लिए पैसा लेगा ना तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। एटलीस्ट हाउसिंग लोन के लिए कहीं तो 7 और 8 रहेगा, लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल लोन के लिए वो लोग बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक, मतलब इट इज ऑलवेज अबाउट 10 और 12%। एम आई राइट? मैम जैसे कि मैम हाँ हाँ, नहीं, बोलो बोलो बोलो। जैसे कि कार लेते हैं तो उसके लिए लोन लेते हैं। हाँ एंड कोई मतलब छोटा मोटा कुछ बिजनेस रहता है या फिर कुछ इनके लिए भी लेते हैं पर्सनल। यस करेक्ट करेक्ट, ठीक है, उनके लिए भी हम लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। मतलब व्हाट वी कैन से इन शॉर्ट कि एक छोटा अमाउंट के लिए कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और अभी आपको एक बात बोलूं, पर्सनल लोन अभी इतना फेमस हो चुका है, भले उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसे आपका वो इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई कर लेता है ना, इसके लिए और उसके लिए ज्यादा क्राइटेरिया भी नहीं है कि क्या है आपके पास करके। जैसे हाउसिंग लोन के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो कैसे बहुत ज्यादा डिटेलिंग वहाँ पे देना पड़ता है, और बहुत बड़ा अमाउंट रहता है करके, वेन एवर वी आर टेकिंग दैट हाउसिंग लोन तो वो बहुत सोच समझ के हम लोग लेते हैं। लेकिन पर्सनल लोन में क्या रहता है, एक छोटा सा अमाउंट रहता है जो आपको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए रहता है,
और आपको वहां पे लेकिन गारंटी देना पड़ेगा कि आप कब तक इसको रीपे कर सकते हैं। मैं आपको इवन ये भी बताऊँ, गोल्ड लोन का अगर हम लोग बात करेंगे ना कि गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लो करके, तो वो भी कुछ ज्यादा सालों के लिए नहीं देते वो लोग। मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व किया, 6 महीना या फिर 1 साल, या मैक्स मैक्स 1 ईयर। मतलब अमाउंट रहे, भले आपका कितना भी गोल्ड रहने तो उसके अगेंस्ट वो हमें पैसा दे रहे, लेकिन वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं देते ये लोग। जैसे हाउसिंग लोन का कैसे हम लोग 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए ले सकते हैं, उस हिसाब से पर्सनल लोन इतने सालों के लिए नहीं दिया जाता है। वो तो और एक है, दूसरी बात और भी रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी हर किसी को कि जितना पॉसिबल हो चुके पर्सनल लोन पे जाइए ना। हाँ, लेकिन कभी कभार जरूरी रहता है छोटे मोटे अमाउंट की वजह से, अगर कुछ बड़ा काम रह जाता है तो वी आर demanding on that kind of a loan also. So consumer finance is nowadays very famous one, and all the banks are trying their level best to satisfy the customer. So इसके लिए उनको पर्सनल लोन देना ही पड़ता है, कंज्यूमर फाइनेंस उनको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक यूनिवर्सल बैंकिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उनको कंज्यूमर फाइनेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है, और वो लोग कंज्यूमर फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है करके। ओके, इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट, यूनिवर्सल बैंकिंग एंड द कंज्यूमर फाइनेंस लिंक, कि वहां पे उन्होंने ये टॉपिक डाला करके? समझा आपको? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Chalo, now the next point we're going to see here, universal banking and the future of small business lending. See, अभी हम लोग यहाँ पे small business के बारे में बात करें। The target segments for a universal banking to a market, its asset products are broadly divided into retail and the corporate segment. हाँ, ये तो करेक्ट है। बिकॉज हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिवर्सल बैंकिंग जैसे एक नॉर्मल बैंकिंग जैसा ही नहीं है, तो वो उनका जो भी असेट है, जो भी उनके पास फंड रहता है, दे आर गिविंग इट टू द रिटेल कस्टमर also as well as to the corporate also. The contribution of project finance to corporate sector needs to be low in the entire composition of loans due to obvious asset liability mismatch in the sources and the application of fund. The universal banking aims to increase their exposure to retail segment many-fold year after year, owing to the reason already discussed in the topic about consumer finance. The small business segment, which is commonly referred to as small and medium enterprises, also needs to assume greater importance in the loan policy of universal banking. The reason for which are to some extent similar to the reason why universal banking attention during the development of banking product. This sector has a huge potential to grow at a faster pace. The gestation period for generation of income and favorable cash flows is very low. The control mechanism for effective monitoring in short, at length, and with the use of technology, it is becoming easy and speedy. See what we have seen, whatever as universal banking is known for providing wide range of financial services, so they are connected with the retail sector also, they are connected with the corporate sector also. So corporate sector में they are providing the project finance मतलब अगर तुम लोगों को कोई बिजनेस करना है और वो बिजनेस के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल गोइंग टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट आप बैंक के पास सबमिट करोगे, एंड एज पर दैट प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट स्टडी करने के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग इज फाइंडिंग इट कि अच्छा हाँ ये बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है, शायद ये सक्सेसफुल रह सकता है, तो उसके अंदर यूनिवर्सल बैंकिंग आपको फंड देता है, लोन देता है। उतना ही नहीं तो कभी कभार जो मशीनरी की आपको जरूरत है, वो मशीनरी वो बैंक आपके लिए खुद खरीदेगा, और वो आपको उसको लेन पे मतलब लीज पे देता है। यस, ठीक है। तो वो आपको लीज पे देता है, ठीक है। मतलब मशीनरी भी अगर आपको नहीं खरीदने के लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल बैंकिंग को लगता है कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहिए, मुझे उनको हेल्प करना चाहिए। हेल्प करना चाहिए इन द सेंस ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया करके, वहां पे उनका भी शेयर रहेगा, दैट विल बी द वेरी मैक्सिमम शेयर दे विल गोइंग टू हैव। सो बैंक विल गोइंग टू ट्राई द लेवल बेस कि कैसे वो बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, बिकॉज वहां पे उनका पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, so this way to provide the small business lending, मतलब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, वो अप्रूव बैंक करती है, अगर वो बैंक को वो सुटेबल लगता है, देन बैंक विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द फंड। उसको कहा जाता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस लेंडिंग, ठीक है। जैसे कि
स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल बिजनेस है, तो उनके लिए पैसा देने का काम, लोन देने का काम यूनिवर्सल बैंकिंग करती है। और अभी के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। दिस इज द करंट नीड ऑफ द पीपल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज दो वी आर सेइंग ओके वी विल गो इनटू प्लान फॉर अ जॉब, हम लोग जॉब करेंगे, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद में पीपल आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इनटू द जॉब। नाउ व्हाट इज, दिस इज व्हाट द सिचुएशन है। पहले कैसे था? पहले गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिलता था, तो सब कुछ एकदम आराम से होता था। अभी गवर्नमेंट जॉब इजीली मिलता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है, वहाँ पे लोग बहुत काम करवा के लेते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। then the people are getting fed up with that and they are literally leaving that job and they are trying to come with the business। तो अभी बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत हो चुकी है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, अर्न करना है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास दे डोंट हैव अ ह्यूज फंड। तो फॉर दैट रीजन दे विल गोइंग टू डिमांड इट फ्रॉम द बैंक। तो इसके लिए बैंक के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है ऐसा फंड प्रोवाइड करना। ओके, so the future of small, or we can say medium enterprises lending in the context of universal banking can be discussed considering the following point। तो अभी ठीक है, ये क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला है लाइफ साइकिल ऑफ एसएमई। एसएमई का फुल फॉर्म क्या बताओ अभी आप लोग मुझे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमई हियर? स्मॉल एंड, बोलो स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमई? S for small, M for medium, and E for what? Enterprises. Small and medium enterprises. Okay. Small and medium enterprises need at every stage of the life cycle a suitable type of a fund from suitable channel. The bank sources of fund are mainly short term. ठीक है, बैंक का जो सोर्स ऑफ फंड रहता है बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। इवन लॉन्ग टर्म फंड्स आर सोर्सेज फॉर अ पीरियड ranging from 1 to 3 years. Unlike SME in the formation or break-even stage, those in the growth and the maturity stage require funds for the short term. The economy over last decade or so has registered a satisfactory growth rate throughout. There is a tremendous surge in the demand in retail market. This situation is favorable for the growth of the SME. The banks under the circumstances would prefer to lend to SME in the growth of maturity stage of their life cycle। देखो उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो वो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो भी आपको इनिशियली बहुत फंड की जरूरत पड़ती है, इनिशियल स्टेज पे आपको जरूरत पड़ती है। जैसे एक बार वो पीरियड खत्म हो जाता है देन उसके बाद में आपके बारे में ऑलमोस्ट पब्लिसिटी हुआ रहता है, सो इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू कम एट द ग्रोथ लेवल। ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ एसएमई जहाँ पे एक्चुअली उनको सोर्सेज ऑफ फंड की जरूरत है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द पीरियड ऑफ द स्टार्टिंग टू द टिल 3 ईयर। और इनके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड बैंक्स आर प्रोवाइडिंग। Okay, so therefore it is very much important ki as per the life cycle of SME, banks can provide the loans to them as per their requirement। then मतलब एटलीस्ट बिजनेस सेटअप होने दो, वहां पे एक लेवल पे आने दो, है ना, वो लेवल पे आ जाने के बाद दे डोंट नीड अ फंड बिकॉज थ्रू द प्रॉफिट ओनली दे विल गोइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ। तभी शायद उनको इतना फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड वेन एवर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ दे विल नीड अ फंड सो दैट विल बी फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ओनली। Then the prudential norms and the approach of universal banking. It is expected that with the implementation of the Basel II norms, bank will be free to a great extent to evolve resource allocation according to internal rating based approach. The banks will be expected to be financed on more competitive terms here. Okay, prudential norms and the approaches of universal banking। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी बैसल के बारे में पढ़ा हुआ था। तो जैसे बैसल 2 में वहाँ पे बैंक का क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए करके, उसके अकॉर्डिंग प्रूडेंशियली मतलब लीगली अगर हम लोगों को पूछा जाएगा, सो बैंक इज बिंग परमिटेड टू प्रोवाइड द फंड और टू प्रोवाइड टू हेल्प द बिजनेस फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो जैसे बैसल 2 में ये भी इंडिकेट किया गया था कि बैंक्स को अलाउ किया गया है मशीनरी खरीदने के लिए और वो लीज पे देने के लिए। So this way, as per this prudential norm, the universal bank can provide the firm the facility which they require so that they can be competitive in the market. Okay. Next year, technological leverage. The universal banking giving exceptional thrust to implementation of modern technology are able to offer low cost transaction solution to the small medium enterprises.
The transaction through cards reduce transaction costs, offering economies of scale. The facilitator of payment mechanism like bill payment option through internet, e-commerce initiative through specified portals, and B2B solution, bank-to-bank solution can work wonder for SME. Universal banking can offer plenty of technology solution to SME, which on one hand would help SME increase their business and reduce transaction costs, and on the other can help universal banking to effectively monitor cash flow of SME to ensure quality of advance. See, technology leverage, it means what here? Nowadays, like many banks are trying their best to be a technologically updated one. Okay, so they are coming out with the different facility on the technology कि कैसे वहाँ पे मतलब easily all this kind of a transaction can happen by using the information technology. So and even with the help of that, it will be quite easier for the bank to take a to keep a track on the people like what they are doing with the funds and all. क्योंकि ये सब important है. So these are 3 points which we have understood कि small medium enterprises को जब बैंक कोई help करता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या बेसिस पे यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको लोन प्रोवाइड करे करके. So this is what small and business lending. So today we have seen the consumer finance. Consumer finance में यूनिवर्सल बैंक का क्या रोल रहेगा, एंड देन वी हैव सीन स्मॉल बिजनेस लेंडिंग में यूनिवर्सल बैंक का क्या रोल रहेगा. कंज्यूमर फाइनेंस काइंड ऑफ अ पर्सनल लोन जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे सेटिस्फाई कंज्यूमर की छोटे छोटे इफ द कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम सम गुड्स और सर्विसेज तो वहाँ पे उन्होंने कैटेगरी क्रिएट करके वो ऐसा फंड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकता है so that they are able to provide a different financial services to their customer also, and obviously somewhat they are able to satisfy their customer account holder. Then हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल बैंकिंग स्मॉल बिजनेस लेंडिंग को भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करता है उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए. उनके लिए भी वो लोन प्रोवाइड करता है और ये जो लोन रहता है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा. हमें चार्ज का नमी सकारात्मक केलं ठीक है. उनके लिए भी वो हेल्प करता है और मतलब वहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है और एज पर द प्रोजेक्ट कितने होगा आपने एज पर द प्रोजेक्ट दे आर गिविंग लोन्स टू द स्मॉल बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? इन शॉर्ट क्या होता है यूनिवर्सल बैंकिंग का रोल्स एंड ऑल? इज इट अंडरस्टूड और नॉट? या कुछ नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यू पीपल विल बी रीडिंग दिस पॉइंट मर्चेंट बैंकिंग. आप लोग मर्चेंट बैंकिंग के बारे में रीड करके आओगे और मुझे थोड़ा उसके बारे में समरी बताओगे. दिस इज योर असाइनमेंट. ठीक है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. क्या करना है, जस्ट रीड करो. देखो क्या क्या आपको बताना है. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है ये आपको मुझे बताना है. उसके बाद में मर्चेंट बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बस उतना बताना है. ओके, कैन यू डू दैट? उतना पढ़ के आओगे Yes, आप ma'am. लोग? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, बिल्कुल मगप मत करके आओ. आपको जो समझा कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है, वो कैसे काम करता रहेगा, मतलब क्या सर्विसेज दे, किसको सर्विसेज देता है वो, आप ऐसे अपने लैंग्वेज में बताना मुझे कि क्या समझा आपको. मुझे एग्जैक्ट एकदम बराबर होना चाहिए या फिर एकदम लैंग्वेज एकदम बुकिश लैंग्वेज होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं. जो समझा आपको वैसे मुझे बताना. ओके, तो ये आपके कल के लिए असाइनमेंट है और इसका मार्क्स में आपको क्लास बिहेवियर में कंसिडर करूंगी. जो जो लोग मुझे आंसर देंगे उनको. अच्छा, नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. once again I am telling you student, today at 7 o'clock we will going to have parent meeting. ओके, पेरेंट्स को बोलना है 7 बजे पर ज्वाइन करो. ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाली मैं उनका. आई विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स ओनली टू डिस्कस की अभी जैसे कि अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है तो एकेडमिक ईयर में हम लोग ये एकेडमिक ईयर में क्या प्लानिंग है, ऑनलाइन पे है तो कैसे जाएंगे, कैसा सिलेबस रहेगा, देन कैसे कभी बच्चों का एग्जाम रहेगा. बस इतना ही पूछना है आई कार्ड के बारे में. अगर आपके पेरेंट्स को ऐसा कुछ लगता है कॉलेज के बारे में कंप्लेन करना है, वो तो बहुत ज़्यादा रहेगा है ना. तो अगर उनको कंप्लेन करना है या फिर मुझे कुछ बताना है कि आपके बारे में कुछ मेरे साथ गॉसिपिंग करना है तो चलेगा. आई एम रेडी टू लिसन दैट. ओके, तो पेरेंट्स को बोलो थोड़ा तैयार रहने के लिए. ऑलराइट स्टूडेंट, आप आओगे ना सारे पेरेंट्स के साथ? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. You all are very good student. I know like you all will be. मैम आज है Yes. आज है मैम मीटिंग. आज 7 बजे मैं लिंक भेजती हूँ थोड़े टाइम के बाद. यही अपनी जूम से ही ज्वाइन ठीक होना. है. थोड़ा टाइम है, 15-20 मिनट ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. सबका वो 7 बजे का टाइम खाना वाना पकाने का रहता है, इवन मेरा भी वही रहता है. तो
थोड़ा जितना जल्दी होगा उतना हम लोग कर लेंगे. ओके, ठीक है. अच्छा चलो, नाउ वी विल गोइंग टू टेक द अटेंडेंस.